खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कुश्ती स्पर्धा का ये स्वर्ण पदक का मुकाबला 77 किलोग्राम की ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों का। यहां पकड़ के लिए जद्दोजहद, लेकिन बहुत ही अटैकिंग मुद्रा में दोनों दिखाई दे रहे हैं। कोई एहतियात नहीं, जोखिम भरे टेक्निक का परिचय दोनों द्वारा। और यहां पीछे आकर एक अच्छा अटैक करना चाह रहे थे, काउंटर अटैक किया खूबसूरती के साथ सागर ठाकरान का। और सागर ठाकरान को मिला पहला अंक। क्या जोन से बाहर निकले थे? जी हां, 1-0 की बढ़त है सागर ठाकरान के पक्ष में। What a brilliant start this is for Sagar Thakran with that superb counter attack that he does. And now Surjit comes to the fore also. He's trying to do on a similar footing of what Sagar Thakran is being able to do. Trying to paint his opposition. Makes a huge circle like a dancing crave. And makes him into a standing position. Sagar Thakran already leads by just one single point. It's 1-0 on the board. But Surjit is giving a very, very good counter attack at the moment, but not being able to get his opposition. Can he make him out? Oh, it's the other corner. Sagar Thakran, unfortunately, he gets the point. But initially, it was the force from Surjit, Manojji, which is applied so vitally. जी हाँ, बिल्कुल। आधुनिक कुश्तियों में तकनीक के साथ साथ पावर का भी महत्व होता है। 2 अंक वो बटोर चुके हैं, लेकिन यहाँ से सुरजीत ने यदि 2 अंक की टेक्निक लगाई तो वो बेहतर स्थिति में होंगे, क्योंकि 2-2 की स्कोर पर जिसका बड़ा पॉइंट होता है उसे मिलता है लाभ। और यहाँ पर सुरजीत को अभी बराबरी पर आना होगा, 2 अंक की टेक्निक लगानी होगी, तभी वो बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन काफी उत्साह है सुरजीत में। लेकिन यहां से आपको खेमे करना होगा, क्योंकि आप ग्रिप अच्छी पकड़ते हैं लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते, यही सबसे बड़ी परेशानी। और यहाँ 1 अंक का और इजाफा, क्योंकि यहाँ सुरजीत का पांव चला गया था जोन से, जो कि कुश्ती की लक्ष्मण रेखा होती है, उसको लांघा। और जिसके फलस्वरूप सागर को तीसरा अंक, तीनों अंक जोन से बाहर निकालने के फलस्वरूप एक-एक करके वो उन्होंने बटोरे। Yes, probably the first time, isn't it, Manojji, that you have seen in this 4 days, the 3 hat-trick of points has come. जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। Yeah, absolutely. And 3-0, that's such a crucial watch to see that, isn't it? And let's see what Surjit says. MBU, and it's a great one to harness your potential here. 77 kilogram men's Greco-Roman final. The fight for the gold is going on here at this Lohagar Indoor Hall here in the city of Bharatpur, in the state of Rajasthan. And now just getting the chest on. They cannot attack below the waist, remember, because of the Greco-Roman style. And Surjit is trying everything that he could. Just one chance, one offensive style that he managed, but unfortunately that came in the other corner. So that's the coach of Surjit, making a very crucial eyes, trying to probably talk eye to eye sometimes, Manoj ji. लेकिन अच्छी बात मुझे ये लग रही है मयूर की, यहाँ 77 किलो की कुश्ती है, लेकिन अटैकिंग कुश्ती है। कोई शिथिलता या निष्क्रियता किसी भी ओर से देखने को नहीं मिल रही। और ये एक बहुत सकारात्मक पहलू है इस कुश्ती का, जिसमें पहले राउंड के बाद सागर 3-0 की बढ़त बनाने में कामयाब। और वहीं प्रियांश को अब अपनी नई स्ट्रेटेजी पर विचार करना होगा। और सागर, जिन्होंने लगातार एक-एक करके अंक बटोरे, विपक्षी को धकेला बाहर की तरफ। और वहीं प्रियांश को भी देखना होगा कि किस तरीके से मुकाबले में वापसी की जाती है, किस तरह से अच्छे डिफेंस का परिचय दिया जाता है। और जोन का जो बाहरी जो हिस्सा है उसका खास तौर पर ख्याल रखना होगा उन्हें। नहीं तो एक-एक करके यदि 3 अंक तब बने हैं तो 3 अंक यहां भी बन सकते हैं दूसरे राउंड में। And what I was seeing at our paper, we have 6 more matches to be remaining. There's a double of 130 kilo Greco-Roman final remaining between Dipanshu and Krishna, the last match of the day. That will be 260 kilogram in total on the mat. We have seen 250 before. This will be 260. That will be a last match of day number 4, the final day of the wrestling discipline of the 5th Khelo India University Games 2025 on this day. Now, making him absolutely go over him for those 2 points to make it 5 now. जी हाँ, जोन पर अपनी तत्परता दिखाई, 2 अंक बटोर कर 5-0 की बढ़त लेने में कामयाब सागर ठाकरान।
और निश्चित तौर पर इस मुकाबले में प्रियांश कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी तरफ से वो तत्परता, चुस्ती फुर्ती, चपलता, ये सब दिखाई नहीं दे रही। और रही सही कसर जो है जोन पर, वो और ज्यादा वीक हो जाते हैं। यहाँ 2 अंक का और इजाफा हुआ। एक तरह से मैं कहूंगा आत्मसमर्पण कर दिया उन्होंने ये अंक देने के लिए। और इस तरह की मूलभूत गलतियां यदि आप करेंगे, और वो भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मेडल राउंड में, तो फिर तो भैया भगवान ही मालिक है। आप उम्मीद कीजिए कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और उसके अनुरूप उसे अंजाम तक पहुंचाएं, उसे क्रियान्वित करें। Manoj ji, I was looking at you when you said Bhagwan hi Malik hai. I saw as if God was sitting very next to me. हाँ, देखिए, जब आपके पास मौके होते हैं और मौकों का आप लाभ नहीं उठा पाते, तो फिर भगवान ही मालिक है कहना ज्यादा सही होगा। और बहुत सहजता के साथ इस मुकाबले में विजयी रहे सागर, जिन्होंने कांस्य पदक हासिल किया 77 किलोग्राम की ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती में। Yes, Sagar